بات کریں گے ہم موسم کی، مانسون کا جو اس وقت اسپیل ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی جو ہے بارش میں نہا چکا ہے. کئی گھنٹے موسلادھار بارش ہوئی ہے. نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں. گھروں اور دکانوں میں جو ہے وہ پانی داخل ہو چکا ہے. انڈر پاسز کی بات کریں تو شہر قائد میں بہت زیادہ انڈر پاسز ہیں. وہاں پر پانی جو ہے وہ اس وقت موجود ہے اور بہت سے کراچی کے ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر صبح سے بجلی بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک اچھی بات یہ ہے کہ کافی عرصے بعد بہت زیادہ بڑی تعداد میں بارشیں ہوئی ہیں، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج چونکہ چھٹی کا دن تھا تو تفریحی مقامات پر لوگوں نے بڑی تعداد میں جو ہے وہاں کا رخ کیا اور بھرپور انجوائے بھی کیا. ابھی شام کا وقت ہے اور فورکاسٹ یہی ہے کہ اگلے 2 روز بھی بارشیں ہونی ہیں اور آج رات بھر بھی بارش ہونی ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ براہ راست موجود ہیں ہماری سعدیہ اینکر سعدیہ سیمسن، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ اسٹوڈیو میں موجود تھیں اور ابھی وہ باہر گئی ہیں. تو ان سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ وہ موسم کو کیسے انجوائے کر رہی ہیں. تو سعدیہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ابھی موسم کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے علی، تھینک یو. یہ تھوڑی لگژری ہو جاتی ہے ہم اینکرز کے لیے، کیونکہ بہت سارے اچھے موسم گزر جاتے ہیں اور ہم اسٹوڈیوز میں بیٹھے رہ جاتے ہیں. سو رپورٹنگ فرام ہیئر بڑا اچھا لگ رہا ہے. لیکن پارٹ آف دس کراچی والوں کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ بڑے عرصے بعد اتنی بارشیں ہوئی ہیں، اور میرے خیال میں اب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ بارشیں کراچی والوں کو دیکھنے کو ملیں گی علی. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایک تو ایسی بھی جنریشن ہے جس نے کراچی کا یہ موسم تو دیکھا ہی نہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جون جولائی میں بہت بارشیں ہوتی تھی، جو شاید میرے اور آپ کے بچپن کا ٹائم ہوگا. لیکن اب یہ بارشیں بڑے عرصے بعد کراچی میں آئی ہیں تو ڈیفینیٹلی کراچی والوں کے لیے بہت ہی اچھا سائن ہے. کچھ کراچی والے انجوائے بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم بھول نہیں سکتے کہ کراچی میں جو حالات ہو جاتے ہیں بارشوں کی وجہ سے، جو سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، اور صرف سڑکوں پر پانی جمع نہیں ہے، جہاں جہاں مین ہول کھولے جاتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتے. اس کی وجہ سے جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، جس کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے درخواست تو کر ڈالی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ گلی محلوں میں تو آپ اپنے بچوں کو منع کر دیں گے نا علی کہ آپ نہیں جائیں، بچوں کو منع کر دیں گے. لیکن بڑی سڑکوں پہ جہاں پر آپ نے مین ہول کھول دیے ہیں، وہاں پر کیا ہوگا جب لوگ وہاں کا رخ کریں گے اور سڑکیں ایسے کھلی ہوئی ہیں اور لوگوں کی بائکس اور گاڑیاں اس میں جب پھنس جاتی ہیں تو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اور اس کا ایک ہم نے ابھی ریسنٹ واقعہ بھی دیکھا جب 2 ماہ کے بچہ جو گم گیا اور اس کی لاش بھی نہ مل سکی. تو اس طرح کے افسوسناک واقعے ہر بار کراچی میں جب بارشیں ہوتی ہیں ہوتے ہی ہیں. تو ابھی کیا بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ڈیفینیٹلی بارش ہو رہی ہے. اگر میں اپنے اوپر سے یہ امبریلا ہٹا دوں تو میں پوری بھیگ جاؤں گی. اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہائی ہیلڈ رکھوں یہ امبریلا تاکہ آپ کو ہمارے شہر ہلکی پھلکی فوار ہو رہی ہے یا بڑی موسلادھار بارش ہو رہی ہے؟ کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تو کافی تیز ہو رہی تھی. ایگزیکٹلی بارش کہا جائے کہ ہلکی پھلکی ہے یہ غلط ہوگا. بارش فی الحال ابھی تیز ہو گئی ہے دوبارہ سے، اور جس طرح سے کالے بادل آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے، ایسا لگ نہیں رہا کہ اگلے 2 گھنٹوں میں بھی یہ بارش رکنے والی ہے. اور یہ تو شہر قائد اتنا بڑا ہے، یہ تو ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں گرو مندر پر اس وقت جو صورتحال ہے. لیکن میں جو دور دراز کے علاقے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سوراب گوٹ اور دیگر علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں. کلفٹن اور ڈی ایچ اے کا ہم نے ایک فیز دیکھا، پچھلی جو بارش کا پہلا آیا تھا اس میں 5 گھنٹے مسلسل وہاں پہ بارش ہوئی تھی. تو ڈیفینیٹلی کراچی میں ایک جگہ پہ ایک وقت بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور آپ کے عقب میں جو ہے وہ مزار قائد بھی دیکھ رہا ہے اور بارش کے بعد وہ بھی دھل چکا ہے اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ منظر پیش کر رہا ہے. ایک بار پھر آپ کی طرف آئیں گے. ابھی سکر سے جمیل مغل ہمیں جوائن کر چکے ہیں، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے نوید اکبر. تو سب سے پہلے نوید آپ کی طرف آتے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے گا وفاقی دارالحکومت میں کیسا سما ہے، کیسا موسم ہے اور فورکاسٹ کیا کہہ رہی ہے؟ جی نوید. جو آج دوپہر تک جاری رہا ہے، گزشتہ رات سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو دوپہر تک جاری رہا، اور اب بارش تو رکی ہوئی ہے لیکن ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہیں. تاہم ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے، حبس بہت زیادہ ہو رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ ہوا بالکل رکی ہوئی ہے. اس سے لگ رہا ہے کہ جلد دوبارہ بارش شروع ہو جائے گی. لیکن یہ اسلام آباد کی پہاڑیاں جو ہیں بالکل آپ کو دھلی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مارگلا ہلز جو ہے بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں، اور بارش کی وجہ سے کیونکہ پولوشن لیول جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، گرد بیٹھ جاتی ہے جو ہوا میں ہوتی ہے، تو اب دور تک آپ کا ویژن جو ہے وہ بہتر نظر آتا ہے. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہیں مارگلا کی پہاڑیاں. فیصل مسجد بھی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دور دراز سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہر چیز آپ کو دھلی دھلی نظر آ رہی ہے. اور جیسے کہتے ہیں کہ ساون میں ہر چیز ہری نظر آتی ہے، تو باقاعدہ سبزہ تو پہلے ہی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جو ہے اپنے سبزے کے لیے مشہور ہے. اس وقت تو ہر طرف سبزہ نظر آ رہا ہے آپ کو، ہریالی ہے، ہر طرف خوبصورتی ہے، اور بالکل موسم اپنے جوبن پر آپ کہتے ہیں ساون ہے. اور آج کہہ رہے ہیں کہ آج رات بھی بارش رہے گی، کل
देर तक बारिश का सिलसिला ये जारी रहेगा और ये बारिश का जो स्पेल है वक्फे से 1 से 2 दिन जारी रहेगा। जो शुमाली इलाका जाते हैं, जो अपर पंजाब है, वहां पे बारिश का सिलसिला जारी है। मरी हो, गलियात हो, केपी के अपर एरियाज जो है, स्वात है, जिनमें उनमें भी बारिश हो रही है इस वक्त कह रहे हैं। इसके साथ साथ नारान, कागान, वहां भी बारिश यानी कि आप ये कह रहे हैं वफाकी दारुल हुकूमत में सावन का मौसम तो बड़ा जबरदस्त है, रिगार्डलेस ये कि सियासी मौसम काफी गर्म है। ठीक है, आपकी तरफ एक बार फिर आते हैं। अब सक्खर का रुख कर लेते हैं, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और जमील मुगल ने हमें ज्वाइन किया है वहां से। तो जमील जरा बताइएगा सक्खर का क्या अहवाल है? सुना है वहां पर नशीबी इलाके सैलाब आ गए हैं और बारिश की वजह से बहुत से ऐसे मकामात हैं जहां पर पानी खड़ा हो गया है। जी अली, इस तरह है कि अब एक दिन के वक्फे के बाद आज मूसलाधार बारिश हुई है, कुछ देर बारिश हुई है। इससे पहले जो बारिशें होती रही हैं, मैं इस वक्त जेल रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पर जब बारिश होती है, अगर 30 से 40 मिलीमीटर बारिश होती है तो यहाँ 2-2 फुट पानी खड़ा होता है। तो पिछले दिनों जो है जो दूसरा स्पेल था उसमें यहाँ पर 80 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तो ये सक्खर का और रोहड़ी को मिलाने वाला वाहिद रोड है जहाँ पे बारिश का पानी जो है यहाँ पे 3-3, 4-4 फुट खड़ा होता है। इसके साथ जो पुराना सक्खर है, पुराना सक्खर भी जो है आधा डूब जाता है। तो इंतजामिया की जानिब से इस इलाके के लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये आज से पानी खड़ा नहीं हो रहा है। ये कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये जेल रोड जो है, बारिश थोड़ी सी भी होती है तो यहाँ पानी जमा होता है। वो वैसे तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो जाता है, गटरों का पानी उबल जाते हैं, लेकिन ये खास इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जेल रोड जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और इसके साथ जो है पुराना सक्खर बिल्कुल मौजूद है। एक तरफ आपको ग्रीनरी खूबसूरती नजर आ रही हो और दूसरी तरफ जो है जो बारिश होती है तो बदसूरती नजर आती है। तो लोगों की बड़ी तादाद जो है फिर यहाँ से रोहड़ी सक्खर से नहीं आती, यहाँ से उन्हें दूर दराज से जो है सक्खर बैराज से आना पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत भी ज्यादा हो गई है तो लोगों को बहुत कॉस्टली पड़ता है बैराज से आना। तो ये वाहिद रास्ता है जो सक्खर और रोहड़ी को मिलाने के लिए रोड है, लेकिन यहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता। इसके अलावा आपको शहर की सूरत हाल ये है कि शहर में जो नाले हैं वो साफ पहले नहीं किए गए थे, अब जो है नाले साफ किए जा रहे हैं। तो क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होने की जो है इम्कान है, महकमे मौसम ने बता दिया है कि 1 हफ्ते तक जो है बारिश होगी, जुमेरात तक, तो उसके लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। ताम सूरत हाल जो है ओवरऑल जिस तरह बारिश एकदम ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे जो गटर लाइनें हैं, जो सेवरेज का निजाम है, वो पुराना निजाम है। नए निजाम की बहुत सख्त जरूरत है, मेगा प्रोजेक्ट की जरूरत है, क्योंकि यहाँ सक्खर पुराना शहर है, बहुत ओल्ड शहर है। तो ओल्ड शहर के लिए नए जो है शायद ये भी हो सकती है, लेकिन हमारे हुकूमत है और निजाम भी पुराना है, तो सूरत हाल जो है बिल्कुल वही पुरानी वाली है कि हर दफा बारिशें होती हैं और सक्खर जो है वो डूब जाता है, गटर उबलने रखते हैं। आपकी तरफ एक बार फिर आएंगे सादिया, एक बार फिर जरा आपकी तरफ आते हैं। जरा ये बताइएगा, कुफर टूटा था खुदा करके, ग्रीन लाइन चली थी, मेगा सिटी को पहली दफा मेगा ट्रांसपोर्ट मिली थी, और अभी क्या सूरत हाल है? चूंकि आपके अकब में स्टेशन भी है ग्रीन लाइन का, तो ग्रीन लाइन चल रही है नहीं चल रही? क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले इतला आ रही थी कि बोर्ड ऑफिस के पास उसको रोक दिया गया था, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और उसकी वजह भी हमारे सामने है कि चूंकि हम यूज्ड टू ही नहीं है इस सिस्टम के। हमारे यहाँ मसला ये है कि एक सिस्टम क्रिएट नहीं किया जाता और चीज़ों का आगाज कर दिया जाता है, और लोगों के लिए उनको बज़ाहिर रहमत नजर आ रही होती है चीजें, वो बाद में जब मुश्किल वक्त आता है तो उनका साथ नहीं देते। उसे कंटिन्यू किया गया है, कुछ जगहों से कंटिन्यू किया गया है, लेकिन ओवरऑल कहाँ चल रही है अभी इस हवाले से क्लियरली लोग भी कंफ्यूजन का शिकार हैं और कुछ इतलात नहीं आ रही हैं कि सामने, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है ना हमारे शहर का वो इलेक्ट्रिसिटी का है। और जब आप टोल टू टोल चल रहे होते हैं, स्टेशन टू स्टेशन चल रहे होते हैं, तो फिर वहां पर मसला आ जाता है कि हमने इस तरह की सूरत हाल के हवाले से कोई सिस्टम क्रिएट नहीं किया होता। और यही ग्रीन लाइन का भी, हालांकि आप भी जानते हैं कि जब ग्रीन लाइन खुला तो बहुत सारे लोगों के लिए ये आसानी था और उनको ऐसे ही लग रहा था कि गर्मी का मौसम हो या कोई भी मौसम हो, चूंकि एक वे के थ्रू, एक स्टेशन के थ्रू जाना है ग्रीन बस को, तो शायद ये लोगों की मुश्किलों को आसान करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों की मुश्किलात हर जानिब से आसान, और यही हमने देखा कि रेड बस की वजह की भी लिए लोगों के यही उनके यही थॉट्स थे। लेकिन चूंकि पूरे शहर में भी वो सर्विस नहीं है, और मेरे ख्याल में अगर यही सर्विसेज पूरे शहर में हो तो तमाम तर लोगों को इसकी आसानी मिल सकती है। जो इस वक्त हाल है ट्रांसपोर्ट का वो बहुत ही बुरा है, और ज्यादा से ज्यादा कराचीआइट्स जो हैं वो हम उनको देखते हैं कि वो अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो फायदा हासिल कुछ अरसे तक तो हम ये भी शिकवा करते थे कि दुनिया चांद तक पहुंच गई है, मरीख पर जा रही है, और हमें जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो सही, बिल्कुल एग्जैक्टली सही तरीके से नहीं मिल पाया। अब जरा ये बताइएगा, विजन की बात हो रही थी, नबी अकबर से कह रहे थे कि जैसी मेगा बरसी है तो विजन बड़ा क्लियर हो गया है। कराची में तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो अभी बारिश के बाद कैसा विजन है, सूरत हाल कैसी है? विजन डेफिनेटली
क्लियर है जब तक हम आसमान पर देखते हैं। अली, जब जमीन पर देखते हैं ना तो विजन धुंधला तो जाता है, चकरा जाता दिखती हैं है। फिर। जी बिल्कुल, फिर धुंधला जाता है और चकरा भी जाता है। और ये तो हम बात कर रहे हैं ना कि कुछ लोगों को ये लेवरेज है कि वो बेटर प्लेसेस पर बैठकर इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त अपने घरों के अंदर कैद हो गए, जिनके घरों में पानी दाखिल हो गया क्योंकि सड़कों से पानी उबल रहा है, गटर पहले साफ नहीं हो सके, उनका क्या कहेंगे? और ये क्या खूब हो अगर कि ये जो आसमान पे विजन साफ है, ये हमारे सियासी विजन को भी अगर साफ कर दे तो बहुत सारे लोगों की मुश्किलात आसान हो जाए। क्योंकि हर दफा देखें ना, कराची में बारिशें होती है, बारिश से एक महीना पहले अचानक से जैसे ही महकमा मौसमियात ये ऐलान करता है कि जी ये स्पेल आएगा, तो वो स्पेल आने से कुछ एक हफ्ते पहले हम साफ करते हैं। हमारे नालों में इतने पुरानी गंदगी है, इतना पुराना कचरा है, उसको एक हफ्ते में कहाँ साफ करेंगे? और वो होता भी नहीं है साफ। प्रैक्टिकली वो चीजें, सूरत हाल हमें क्लियर होती हुई दिखती भी नहीं है। और हम कोई भी चीज क्यों नहीं, कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, हम उसे तकमील तक पहुंचाते नहीं है। और उसी वजह से बार बार कराची के अवाम, तो ये कहो कि बेयारो मददगार है, ये कहना गलत नहीं होगा, बार बार वो उसी मसले के अंदर धंसे हुए हैं, उसमें से उन्हें कोई निकाले। एक दलदल सी है कराची वालों के लिए जहां उनका कोई मसला हल नहीं। अब देखिए कितनी बारिश हो रही है, लेकिन इससे कराची वालों के पानी का मसला हल होगा? मुझे नहीं लगता कि हल होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि आम कराची जब ये भी एक बड़ी बात है कि अब्र रहमत को जो है वो कराची वाले ज्यादातर जो है वो अपने लिए जहमत समझने लगते हैं, क्योंकि अबर तो वो रहमत के तौर पर बरस रही होती है, लेकिन वो हमारे लिए चूंकि उस तरीके की सहूलियात नहीं है तो वो जहमत बन जाती है। टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे नाज़रीन देख भी सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना खराब है, सड़कें कितनी खराब हैं, और नाले जो है वो खुले हुए हैं, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, हादसात भी हो जाते हैं। और आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कह भी रहे थे कि बारिशें हों तो घरों से ना निकलें। दुनिया भर में लोग इंजॉय करने के लिए निकलते हैं, हमारी हुकूमतें कहती हैं कि हम घरों में बैठें, और बारिशें जब हो तो नुकसान से बचने का एक ही तरीका बता दिया गया है कि घरों में बैठा जाए। एक बार फिर इस्लामाबाद का रुख करते हैं। नवीद, आपकी तरफ आते हैं। अब जरा ये बताइएगा, आज चूंकि छुट्टी का भी रोज है, इस्लामाबाद शहर छोटा है, बजट बहुत ज्यादा बड़ा है, वेल मेंटेन शहर है, छुट्टी के रोज लोगों ने किस तरीके से एंजॉय किया आज? जी बिल्कुल, पहले मैं आपके पिछले सवाल की तरफ आऊंगा। जब पिछले सवाल में मुझसे बात कर रहे तो आपने एक बात कही कि मौसम तो बहुत क्लियर है, लेकिन सियासी मौसम जो है, वाकई सियासी मौसम बहुत गर्म है। और मैं इस वक्त ये बीपर जो ये जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये भी बनी गाला की पहाड़ी जो है उसके ऊपर से ये रिपोर्ट कर रहा हूँ, इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर, जहाँ पे एक अहम इजलास चल रहा है। जिस तरह से मुस्लिम नून और पीटीआई में लाहौर में गर्म है, और इस्लामाबाद की जो बनी गाला की पहाड़ी है वहाँ पे पीटीआई की कारकुन की जो क्यादत है वो सर जोड़े बैठे हुई है। और जो आपने कहा विजन की बात की कि मार्गला का विजन, अच्छा आप अपनी बात को तो कंटिन्यू कीजिएगा नवीद, साफ है, लेकिन नवीद अपनी बात को कंटिन्यू रखिएगा, चूंकि आपके अकब का व्यू बड़ा जबरदस्त आ रहा है, तो कैमरामैन को कहिएगा जरा पैन करके ना पूरा एरिया दिखाए भी। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि पूरा एरिया दिखाए, क्योंकि इस बनी गाला की पहाड़ी के ऊपर मैं मौजूद हूं। जैसे मैंने कहा, बनी गाला के अंदर जो है इस वक्त मीटिंग जारी है, जबकि इसके दूसरी तरफ मार्गला हिल्स है, और मार्गला हिल्स के साथ जो है आपको पता ही है कि पार्लियामेंट हाउस भी है मार्गला हिल के, और बनी गाला के दरमियान में प्रेसिडेंसी भी है, कैबिनेट ब्लॉक भी है, और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी है जो कल से बहुत ज्यादा मजीद गर्म होने जा रही है। तो सियासी धुंध जो है वो जरूर छाई हुई है, अगरचे मतला साफ है, मौसम साफ है, सियासी मौसम जो है थोड़ा सा धुंधला है। उम्मीद है कल से दोबारा धुंध जो है छटना शुरू हो जाएगी। और इस वक्त भी शहर इक़्तिदार का मौसम जो है वो वाकई में बहुत शानदार है, और लोग यकीनन पार्कों की तरफ गए हुए, पार्कों में एंजॉय भी किया जा रहा है, सब कुछ है। लेकिन इस नजरें जो है वो सबकी जो है वो कल की जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होने जा रही है, जो कंटिन्यूएशन है, कल जो गुज़िश्ता रोज जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग, उसकी तो ये मैं सियासी मौसम को भी आपको थोड़ा सा मैंने कहा हाल बता दूं। और नून लीग और पीडीएम इस वक्त जो है वो सरगर्म है लाहौर में, और पीटीआई जो है सरगर्म है। सियासत की तो बात होगी, जरा मौसम पे आ जाते हैं। जी नवीद, मार्गला हिल्स के ऊपर बहुत इस वक्त रौनक है, लोग बड़ी तादाद में गाड़ियां जो हैं वो मार्गला हिल्स की तरफ गई हुई हैं, पीर सुहावा हो या दामने को हो, इस वक्त वहां पे खचाखच भरे हुए हैं ये तमाम एरिया जो है। लोग अपनी छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं। लोग इसके साथ साथ जो रावल डैम पार्क है वहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, वो वहां पे एंजॉय करें, बच्चों को लेके गए ताकि वो मौसम को एंजॉय कर सकें, और ये जो सावन है इसका सही मायने में इसका मजा उठा सके। कुछ लोग बारबेक्यू भी कर रहे हैं वहां पे, कुछ लोग मैंगो भी लेके गए, मैंगो पार्टियां हो रही हैं, तो सब कुछ साथ साथ चल रहा है। जी चले, हमने मैंगो पार्टीज की बात करी, अब एक बार फिर शक्कर का रुख करेंगे। जमील जरा ये बताइएगा, आम की फसल हुई, प्री मानसून में बहुत ज्यादा बारिशें हुई थी तो आम की फसल मुतासिर हुई, खजूर की फसल मुतासिर हुई, इसके अलावा भी किसानों ने शिकवे किए हैं कि उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये जो अब हालिया बारिशें हैं और मजीद एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में और बारिशें होनी हैं, तो क्या कहा जा रहा है, मजीद कितना नुकसान हो सकता है किसानों को?
अली आप देखें, खजूर का जो फसल है हमारे सिंध के लिए जो है वो ज़रई रीढ़ की हड्डी रखती है ज़रई मईशत में। तो खजूर की फसल तकरीबन बताया जा रहा है कि 75% जो है खजूर की फसल जो है वो तबाह हो गई है। जो खजूर से छुआरा बनता है वो भी जो है बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का इस वक्त नहीं बन रहा। बची कुची जो खजूर है उससे छुआरा बनाया तो जा रहा है, लेकिन जो खजूर से खजी बनती है, जो आप रोजे के लिए, रोजा इफ्तार करने के लिए आप खजी इस्तेमाल करते हैं, वो इस साल खजी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि खजी नहीं मिलेगी तो आपको दीगर ममालिक से जो खजी जो है ना मंगानी पड़ेगी, ईरान से मंगानी पड़ेगी या दीगर ममालिक से। तो शक्कर का और जो खैरपुर की खजूर है, खजी है, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। और मैं आपको एक बार फिर बताऊं कि शक्कर में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की जो है फुहार पड़ना शुरू हो गई है, बारिश के कतरे जो है आना शुरू हो गए हैं, रोड भी गीला होना शुरू हो गया है। हो सकता है मजीद जो जिस तरह बताया महकमे मौसमियात ने कि बारिश तेज होगी, लेकिन बारिश का मैं आपको एक और जो शक्कर में जो आवाम को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसकी थोड़ी सी वजह आपको बताऊंगा कि शक्कर में जो ड्रेनेज सिस्टम है पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के था, अब जो ड्रेनेज सिस्टम दे दिया गया है वो पब्लिक हेल्थ को दे दिया गया है। तो दोनों दरमियान में जो है वो आवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। जिस तरह पहले जो है उसको मेंटेन किया जाता था, लेकिन अब जो है अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं किया जा रहा। तो पब्लिक हेल्थ और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है दोनों के दरमियान जो है ये जो मामला जो है बट गया, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ताम कुछ वक्फे के बाद इस टाइम जो है बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है शक्कर में। सादिया, एक बार फिर आपकी तरफ आते हैं, जरा शॉर्टली ये बताइएगा अभी क्या मौसम का अहवाल है, और जिस तरीके से आपको याद होगा पीएसएल का एक एंथम था जिसमें अली अजमत कहते थे कि तैयार हो, तो कराची वाले आपको लग रहा है तैयार हैं? कल भी अब्रे रहमत जमकर बरसनी है, परसों भी एक्सपेक्टेड है कि 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है कराची में मजबूरी तौर पर। कह रहे हैं कि बस करो, और बारिशों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन ब्रीफली आई वुड टेल यू कि कराची का मौसम डेफिनेटली सुहाना है। जो कर सकते हैं एंजॉय वो डेफिनेटली खाने एंजॉय करें, और उसमें मेरे ख्याल में खवातीन की शामत आती है बिकॉज उनको किचन का रुख करना पड़ता है। और कुछ स्पेशल जो हमारा है ईस्टर्न समोसे, पकौड़े और फ्राइज ये बनना शुरू हो जाते हैं। और बारिश में जो है वो होम डिलीवरी भी नहीं होती। हाँ, ये भी मसाइल है। या तो टेक अवे करें या फिर घर पे आके खाने पकाएं। सो आई वुड खवातीन की स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैं कह रही हूँ इसमें भी खवातीन ही आके फंसती है। बहरहाल जहाँ पे मैं अभी इस वक्त खड़ी हूँ गुरु मंदिर में, फिलहाल बारिश रुक चुकी है और बहुत हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, लेकिन ओवरऑल इतलात यही आ रही है कि घने बादल हैं। अब अगर गुरु मंदिर में नहीं बरस रहे तो किसी और इलाके में बरस रहे हैं, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मेरे अकब में भी अभी देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, और लग ऐसा रहा है कि ये रात तक बादल जो है खाली नहीं होने वाले। चलिए अब देखते हैं कि बारिश का जो अगला स्पेल है वो कब तक स्टार्ट होता है। बहुत शुक्रिया आपका सादिया सैमसन, और जमील वो रिपोर्ट कर रहे थे। जमील आपका भी बहुत शुक्रिया, और नवीद अकबर इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट कर रहे थे, उनका भी बहुत शुक्रिया।